Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, ladies and gentlemen, to the Bank of Punjab's corporate briefing session 2025. I welcome you all on the behalf of the management and the president and the board of directors. Thank you for joining us. We'll start our corporate briefing session, and I would want to tell you about the format of this meeting. The format is such that we'll start with the presentation that will be given by our Chief Financial Officer, Mr. Nadeem Amir. He will give you a presentation on the financial results of 2025, the year end 2024 and first half of the year 2025. After that, we'll open the floor for questions and answer sessions, for which I would request you to please raise your hands on the Zoom, and we'll take questions one by one. The management will then give you the answers accordingly. Now I request CFO Mr. Nadeem Amir to please give the presentation on the financial performance and position. Thank you very much, Kamran. Welcome to all participants at the annual corporate briefing of the Bank of Punjab. Presentation हमने already website पे post कर दी थी. Just have a quick run of the presentation. इसमें slide number 2 पे हम overview दे रहे हैं BOP, what is BOP, और इसमें listing year है हमारा 1991, 32 billion का हमारा paid up capital है. Major sponsors हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैं. ब्रांच नेटवर्क 900 ब्रांचेज विद इन 439 सिटीज़ को हम कवर करते हैं. ATMs 938, स्टाफ स्ट्रेंथ 14,965 एंड वी हैव अ AA+ Pectra rating for long term and A1+ for the short term. Next one is the performance highlights हैं half yearly 2020 first half of the year 2025 के, जिसमें मेजर जो इम्प्रूवमेंट्स या समझ लें कि key attractions there is the highest ever profit before tax, highest growth in the net interest income, highest half yearly operating profit, and the first ever interim cash dividend announced for the shareholders. For the fee commission income, जिसमें 40% की इंक्रीज है over the corresponding period. Current deposits 43% से ग्रो किए हैं. इस्लामिक बैंकिंग 80 के डिपॉजिट्स 80% से ग्रो हुए, और एक्विटी के अंदर हमारा 120% की राइज है. सो मटेरियली अनरियलाइज्ड गेंस जो है वो शामिल है. परफॉर्मेंस के जो मेन करैक्टर्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द नेट इंटरेस्ट इनकम है. निम हमारा सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ 116% से. सिग्निफिकेंट राइज इन करंट डिपॉजिट्स हैं 43% से. एक्सेलरेटेड डिजिटल अडॉप्शन है. इन्हांस्ड फी इनकम एंड द न्यू प्रोडक्ट्स एंड कमीशन इनकम, equity growth and unrealized gains, and the prudent risk management. So what are the key drivers for sustainable profits? Continuous growth in current deposits, offering of tailored products, deposit products to enhance customer base, effective repricing of the term deposits, growth in private deposits, enhancement in fee income, digital onboarding of customer for cost minimization, and concentrated efforts to maintain asset quality through robust risk management. So what is improvement in the market front? BOP शेयर प्राइस 294% से जंप की है. हमारी प्राइस 8 सितंबर को 20 रुपये 6 पैसे को टच किया. BOP की स्क्रिप्ट की प्राइस थी, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग डेट लास्ट ईयर के पास जस्ट 5 रुपये 9 पैसे की प्राइस थी. एवरेज शेयर प्राइस के अंदर 80% की इंक्रीज है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर. हमारा 10.75% एवरेज प्राइस हमारे शेयर की थी, जो कि ड्यूरिंग द ईयर 2024 इट वाज जस्ट 5 रुपये 98 पैसे. अभी जो हमने हाफ ईयरली इंटरम डिविडेंड अनाउंस किया है, बेस्ड ऑन दैट एनालाइज रिटर्न इज 18.6% फॉर द ईयर बेस्ड ऑन द हाफ ईयरली इंटरम अनाउंसमेंट. एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो दैट्स बीन इम्प्रूव टू 61 बिलियन एज ऑफ 11 सितंबर 2025. Then on the capital front, capital adequacy requirements, we have comfortable 17.42% CAR and 3.46% leverage as at close of the quarter. Deposit concentration and the mix, that is very evident from the graph. Our current deposit share is 39% for the private deposits, and the Islamic books 48%. Savings 42% current and the 10% in the term deposits. Advances currently as on 30th June stood at rupees 777 billion. Then BOP's digital success during first half of the year, there are some
की फीचर्स ऑफ द BOP डिजिटल परफॉर्मेंस, इसमें हमारे पास हमने डाटा डिजिटल ऐप के ऊपर ऑनबोर्डिंग का है, BOP डेबिट कार्ड्स, SMS बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, रास्ट, ATM, किसान कार्ड, किसान कारोबार, लाइफ स्टॉक एंड क्रेडिट कार्ड्स की परफॉर्मेंस हमने इसमें आपको डॉक्यूमेंट की है। देन वी हैव मोर देन 30 अवार्ड्स, इंटरनेशनल एंड लोकल अवार्ड्स जो BOP ने नाम किए हैं ड्यूरिंग द ईयर 24 and 25 में। Just for the record purposes, performance 2024 and 2023 from slide 13 to 14. 15 is the key financial for the last 6 years. Some key ratios on slide number 17. And then the important one is the future outlook, जिस पे जफर साहब अभी पार्टिसिपेंट्स को भी ब्रीफ भी करेंगे। मेजर जो है हमारा डिपॉजिट मिक्स इम्प्रूवमेंट है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स। इस पर अभी ड्यूरिंग डिस्कशन जो है वो प्रेजेंट साहब जो है वो आपको अपडेट करेंगे। कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो कस्टमर एक्सपीरियंस साइड के ऊपर लिए मैनेजमेंट ने टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, जिसमें हमारे पास 4 तरह के हमने इनिशिएटिव्स जो हैं ये डॉक्यूमेंट किए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिससे कि कस्टमर्स की जो सेटिस्फैक्शन है उसको इम्प्रूव करने और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इन्हांस करने के लिए होपफुली द कस्टमर विल एक्सपीरियंस बेनिफिट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स इन द कमिंग पीरियड। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अच्छा जी, अभी आपने प्रेजेंटेशन देख भी ली होगी इन द जो हमने वेबसाइट पे लगाई थी, और अभी CFO साहब ने उसके बारे में आपसे कुछ उसके बारे में जो खदोखाल हैं वो शेयर भी किए हैं। मैं सिर्फ 2 गुजारिशात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पे होता या जो आपको चीज़ें उसूली तौर पे मेरे हिसाब से बॉदर करनी चाहिए, वो 2 चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि 2 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो थोड़ी सी अनयूजुअल है। एक तो है जो हमारा NII में एकदम से आपने देखी है कि बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, which has not been the tradition in the case of Bank of Punjab. मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि ये कोई ओवरनाइट कोई चेंज नहीं आया है। This has been in works for quite some time now. Almost 3-4 years we worked really hard in building our the culture for current accounts and culture for appreciating the average balances in our current and saving accounts. And जो अभी आपको सामने नज़र आ रहा है ये कल्मिनेशन है उस एफर्ट का जो फाइनली started from the change of culture at the branch level, from going after the bulk deposits to now the retail deposits, and focusing on current account and improving the averages of current account. अगर एक और जो मिसनॉर्मर मैंने देखा कई लोगों ने कहा ये कि गालिबन ये जो बूस्ट आया है ये MDR की वजह से आया। मैं कुछ आपसे फैक्ट्स शेयर करना चाह रहा हूँ। जो MDR की वजह से ये बूस्ट आया है वो सिर्फ 25% है। जो 75% बूस्ट आया है उसमें अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जिसमें तकरीबन 25% की जो अभी इम्प्रूवमेंट आई है दैट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट एवरेजेस। जो दूसरा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है वो हमने टेलर मेड प्रोडक्ट्स कुछ सेविंग्स के लिए बनाई हैं, प्राइमरीली ट्रेड एंड कैश मैनेजमेंट ड्रिवन, जिसकी वजह से आपको ये एक इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। वो भी कंट्रीब्यूटेड तकरीबन 10% का, और 40% जो आपको नज़र आ रही है इम्प्रूवमेंट इन NII, that's primarily based on the improvement in the advances and investment, increase in the volume, and also the improved margins, better pricing, both on the deposits as well as on the asset side. एक और जो फिनोमेना हमने देखा कि जिन बैंकों की NII बहुत सब्सटेंशली बढ़ी है उन्होंने कैपिटल गेन्स बुक किए हैं। इन आर केस हमारे कैपिटल गेन जो थे वो लास्ट ईयर ज़्यादा थे, इस साल कम थे, उनको बल्कि NII ने कॉम्पनसेट किया है। तो हमने हमारी इस दफ़ा रिलायंस ऑन कैपिटल गेन्स भी थोड़ी सी कम हुई है, एंड जो कोर बिजनेस है उसमें आपको एक स्ट्रेंथ और एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है।
जो ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और क्या ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से हम ये श्योर हैं कि ये मोमेंटम जो है ये चलता रहेगा। पहला जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये कि हमारी जो एवरेजेस हैं करंट अकाउंट की वो इम्प्रूव हुए हैं बाय 40%। ऑल्दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मोमेंटम और बेहतर होगा और ये एवरेजेस का परसेंटेज और बेहतर जाएगा। नेवरदलेस अगर मैं 40% भी कर लेता हूँ तो क्योंकि पूरे साल का बेनिफिट आएगा तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि हमारी NII आगे कहाँ जाएगी और सब्सिक्वेंट ईयर्स में कहाँ जाएगी। दूसरा ये कि जो हमारा करंट अकाउंट है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल अकाउंट वो हमने इस साल रखा हुआ था अपना टारगेट 22% का, वो ऑलरेडी 24 पे आ गया है। हम फिलहाल यही कहते हैं कि हम 24 पे ही रहेंगे, ऑल्दो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो उससे भी बेहतर होगा। जितना वो बेहतर हो जाएगा उतनी आपको अपसाइड नजर आएगी। और अगर आप हमारी बैलेंस शीट देखेंगे ऑन हाफ ईयर की तो आपको उसमें ये भी नजर आएगा कि हमने जो है तकरीबन 6 अरब रुपए के अनरियलाइज गेंस जो हैं कैपिटल गेंस वो ट्रेजरी में हमारे पास रखे हुए हैं। हमारा हम उसको शायद बुक करें, शायद बुक ना करें, शायद हम उसको कंटिन्यू करें, मगर फिलहाल हमारी ये सारी वो अपसाइड्स हैं जो मैं आपको कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आउटलुक कैसी लग रही है 6 महीने में एंड बियॉन्ड। बट जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है इन आर केस वो एक्चुअली जो हमारी टर्म डिपॉजिट्स हैं, जो टर्म डिपॉजिट रिसीट्स हैं, TDRs जिसको हम कहते हैं, वो हमारा जो कॉम्पोजिशन है इन द टोटल डिपॉजिट वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी अदर बैंक्स। और अगर आप ये देखेंगे कि हमारी तकरीबन जो 64% जो TDRs थी वो मैच्योर हो गई थी इन बाय जून 30th, और उसका आपको बेनिफिट हाफ ईयर में तो नजर आया ही है, मगर उसका एक बहुत बूस्ट आपको नजर आएगा इन द कमिंग 6 months बिकॉज ऑफ वो उस प्राइस पे बुक हुई है कि जिसका बेनिफिट मार्जिन और मजीद बेहतर होगा, NII और ऊपर जाएगा और वो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स में रिफ्लेक्शन उसकी आएगी। और अगर मैं आपको नंबर देता हूँ अगस्त का, तो अगस्त के महीने में तकरीबन 87% जो हमारी हैं टर्म डिपॉजिट वो मैच्योर हो चुकी हैं और सारी की सारी रीप्राइस हो चुकी हैं। सिर्फ 13% रह जाती है जो सितंबर से दिसंबर के दरमियान होनी है। वहाँ भी जिस तरह आप लोगों को पता है जब वो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो ये टर्म डिपॉजिट काफ़ी आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो जितना जितना हम उस टाइम के करीब आते जा रहे हैं जब रेट बहुत ज़्यादा कटे थे, उतना ही ज़्यादा हमारा मार्जिन बेहतर होता जा रहा है और हमारा NII बेहतर होता जा रहा है। सो देयरफॉर अ सब्सटेंशियल improvement is expected in our NII going into the future. So I thought ये तो आपको दो चीज़ें बिल्कुल जेन्युइनली पूछनी भी चाहिए और आपको शायद बॉदर भी कर रही हूँ, तो लिहाजा मैं उसको अप फ्रंट टैकल कर लेता हूँ। दूसरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑब्वियसली फ्लडिंग हुई भी है और काफ़ी मैंने देखा इधर उधर भी कोई सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ कुछ थोड़ी सी नॉइज़ थी कि, और राइटली सो परहैप्स, कि जी वो हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो एग्रीकल्चर को और SME का है और अगर वो लॉसेज आ गए तो क्या होगा। मैं ज़रा आपको 2-3 चीज़ों पे जरा आपसे फैक्ट शेयर कर लेता हूँ। हमारी जो टोटल किताब है वो 770 बिलियन रुपए की है एज ऑफ 31st of August। उसमें से 32.73 1/3 ऑफ आर टोटल advances are SME and agriculture. Out of that 1/3 का 76.59% जो है वो हमारा फर्स्ट लॉस गारंटी से कवर्ड है, आइदर बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो वो हमने फर्स्ट लॉस गारंटी के थ्रू तकरीबन ऑन एन एवरेज वो 20 से 30% के दरमियान हमारी कवरेज हमारे पास मौजूद है उस पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर। उसमें से जो हमारा अपना बाकी पोर्टफोलियो रह जाता है और जो इस वक्त फर्स्ट लॉस में नहीं है और जो अफेक्टेड एरियाज के अंदर आ रहा है, जो 25 तहसील गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, उनमें से 8% सिर्फ हमारा अफेक्टेड पोर्टफोलियो का अफेक्टेड एरिया में सिर्फ 8% ऑफ आर टोटल पोर्टफोलियो ऑफ SME एंड एग्रीकल्चर जो है वो फॉल करता है। और उसमें से जो पोर्शन जो है वो सिक्योर्ड या इंश्योर्ड है
वो 93.5% है और 6.5 वो है जो क्लीन लोन है। सो देयरफॉर वहाँ भी कोई बड़ी परेशानी हमें नज़र नहीं आती। हैविंग सेड दैट, हम लोगों ने अभी भी अपनी ओन असेसमेंट की है कि कितना पोर्टफोलियो हमारा एट रिस्क है अदर देन द फर्स्ट लॉस गारंटी, और जब हम उसको देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि तकरीबन 0.4% ऑफ आर टोटल पोर्टफोलियो जो है वो सिर्फ एक्सपोज्ड है टू अ पॉसिबल डाउनसाइड रिस्क ऑफ प्रोविजनिंग देन एनीथिंग एल्स। हैविंग सेड दैट, वो प्रोविजनिंग भी हम इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि देयर आर 2 or 3 पैकेजेस दैट द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट। गवर्नमेंट ने जो फ्लड डैमेज की असेसमेंट की जो कमेटी बनाई है उसका मेंबर मैं भी हूँ पंजाब में यहाँ पर, और मुझे काफ़ी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और काफ़ी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैं आई एम वेरी प्लीज टू शेयर विद यू कि वहाँ पर गवर्नमेंट एटलीस्ट 2 ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो कॉन्टेम्पलेट कर रही है और मे बी मोर, कि जहाँ पर जो अफेक्टेड लोग हैं इस एरिया के अंदर उनको गवर्नमेंट कुछ कैश ग्रांट देगी और गालिबन कोई एक आध फैसिलिटी भी इंटरेस्ट फ्री जो है वो उनको ग्रांट करेगी ताकि वो अपने आप को खड़ा कर सके और बिजनेस को आगे चला सके। और वो लोग होंगे जो अगर हमारा उनके साथ पोर्टफोलियो है तो ऑब्वियसली अगर वो हमारे पोर्टफोलियो पे करंट हुए तो वो आगे चलेंगे, अदरवाइज उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, वाइल यू नो आप लोगों का कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मगर जिस तरह मैंने आपसे ये पूरी पोजीशन शेयर की है, हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है कि खुदा ना करे हम कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं विद सम अनफोर्सीन रिस्क। आई थिंक इट्स वेरी मैनेजेबल एंड कंटेनेबल इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। इस तरह मैंने आपसे कहा कि पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क भी अगर मैं ले लेता हूँ, जो एट रिस्क जो हमारा पोर्टफोलियो 0.4% है, वो जिस तरह के नंबर्स हमारे अभी आपने देखे हैं NII के अंदर आ रहे हैं, I don't think it's difficult for us to absorb those shocks. So therefore, all in all, mashallah se, the outlook is very positive, and more so the impact of flooding and all seems to be contained and under control. Having said that, obviously अभी assessment जारी है। आप लोगों को पता है कि पानी ने रिसीड नहीं किया, फ्लो ऑन नहीं किया, तो वो जब हो जाएगा तो हमारे पास और क्लैरिटी आ जाएगी कि कहाँ पर चीज़ें खड़ी हैं। मगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी और फेडरल गवर्नमेंट दोनों इस बारे में बड़े कॉन्शियस हैं, एंड दे विल मेक श्योर एंड सो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि अनफोर्सीन रिस्क से बैंक्स जो हैं वो एक्सपोज ना हो। बैंक ऑफ पंजाब इस मामले में ज़्यादा सिक्योर है इन कंपैरिजन टू दी अदर बैंक्स इन रिलेटिव टर्म्स, ऑल्दो हमारा पोर्टफोलियो बाकियों से बहुत बड़ा है, मगर जिस तरह मैंने आपको फैक्ट्स अभी शेयर किए, एक्चुअली हमारा पोर्टफोलियो जो है वो अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं है फॉर एग्रीकल्चर इन SME एज परहैप्स एक परसेप्शन हो सकती थी। तो आई थॉट ये मैं दोनों चीज़ें जो हैं अप फ्रंट टैकल कर लूँ जो आपको यकीनन तंग कर रही होंगी अबाउट आवर फ्यूचर रिजल्ट्स। कामरान जी। Thank you, Zafar sir. Now we'll open the floor for questions and answers. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज काइंडली अपना हैंड रेज करें ताकि फिर हम 1 by 1 क्वेश्चंस लेके आपको आंसर करना शुरू करें। मुकीत नईम साहब का क्वेश्चन है, हम उनको लेते हैं। जी मुकीत साहब सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। Sir, this is Mukeet Naeem from NBP Fund, and first of all, congratulations on exceptional results in first half. जी सर, मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि अभी जो आपने NII वाली चीज़ डिस्कस की, इसमें आपने ये बताया कि आपके जो टर्म डिपॉजिट हैं वो 87% ऑफ टर्म डिपॉजिट रीप्राइस में अगस्त में। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा मजीद कमेंट ये करते हैं कि वो रीप्राइसिंग किस रेट पे हुई और अर्लियर वो किस रेट पे थे, सो वी कैन हैव एन आइडिया कि वो कितना आपकी NII पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड सेकंड थिंग इज के इंटरिम में बैंक ऑफ पंजाब ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। सो व्हाट वुड बी द पॉलिसी गोइंग फॉरवर्ड, ईदर it would be like quarterly dividend payout, half yearly payout, or what is the policy of the bank on this front? Thank you. सेकंड क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज सैयद फवाद बसीर फ्रॉम K Trade Securities. जी सवाल कीजिए।
Ji sir. So again, just taking cue from what Mukit had asked the first time, I just want to understand. I mean, given the ownership of the bank and it's a government bank and provincial government bank, we've seen that National Bank has also sort of changed their approach to banking, and they are also focusing on recalibrating their deposit mix. Uh, and I think they are doing it at a much faster pace. And a lot of the other banks, peer banks, are also doing it at a much faster pace. So that is the big question. How quickly would you be able to increase this? And the increase in current accounts is, in my opinion, being offset by the increase in term deposits. So over the half year. So going forward, what is the strategy? Is there a strategy to completely, sort of reduce this to a considerable level? That's my first question. And second question is again, some banks have taken a view on borrowings because the investment spread that is available is obviously on the longer term tenures. And just a view on that. What can we expect going forward? Because the borrowings have halved from December. So obviously that's a view on the interest rates. So maybe the Treasury head can shed some light on that. Assalamu alaikum. This is Farhan from Alabib Asset. I have two questions. First question is related to your investment book. Can you please give us a breakdown on your portfolio? How much of your portfolio is fixed PIB, floater PIB, and table? And secondly, can you comment on your admin expense? We've seen that your admin expense have increased by 30% over the half year. And in the last 2-3 years, we have seen double-digit growth in your admin expenses. So what's the reason for that? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मैं वन बाय वन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक तो मुकीद नईम साहब ने सवाल पूछा था कि एनआईआई का जो रेट है और रीप्राइसिंग है। मैं आपको सेफली ये बता सकता हूँ। देखिए, आपके लिए तो बड़ा आसान है ये फिगर आउट करना कि किस तरह इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, और अगर वो जून से मैं लगाता हूँ जून तक, तो आप बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टर्म डिपॉजिट हमने बुक किए हुए थे उस पर कितना हमें एडवांटेज मिलेगा रीप्राइसिंग का। ऑन एन एवरेज मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि तकरीबन हमारा 4 से 5% का जो है वो पॉजिटिव स्प्रेड आ रहा है ऑन द टर्म डिपॉजिट अलोन, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स हैव रिड्यूस सब्सटेंशियली। और जो 87% आप बता रहे हैं वो ऑब्वियसली उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी, मगर जितना जितना टर्म डिपॉजिट हम आगे जाते जा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो जो शुरू में थे वो ऑब्वियसली नीचे आए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट उतना ही कम होता जाएगा। तो शुरू वाले जो अब मैच्योर हुए हैं उन पर स्प्रेड ज़्यादा है। एवरेज तकरीबन 4 के आसपास 4 से 5% हमें नज़र आ रहा है इम्प्रूवमेंट। डिविडेंड की तो जी हमने पूरी पॉलिसी दे दी है। मेरा नहीं ख्याल है किसी और बैंक ने इस तरह स्टेटेड पॉलिसी अनाउंस की है डिविडेंड की, जो बैंक ऑफ पंजाब ने की है, और ये गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस है कि हमें अनाउंस करनी चाहिए। हमने ये उसमें लिखा है कि हम इंटरिम डिविडेंड देंगे और गोइंग इनटू द फ्यूचर भी देते रहेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी, जो हमने वहाँ पर लिखा था, कोशिश ये होगी, जिसको लोगों ने मिसकंस्ट्रू भी किया, हमने कहीं कमिट नहीं किया था कि हम क्वार्टरली डिविडेंड देंगे, कि हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि हम क्वार्टरली दे सकें। हाउएवर हम इंटरिम डिविडेंड देंगे और हमने अपना प्रॉमिस को पूरा किया है। आप देख रहे हैं कि बैंक ऑफ पंजाब की हिस्ट्री में 1991 में लिस्ट हुआ था और आज तक हमने पहली दफ़ा इंटरिम कैश डिविडेंड दिया है, और वो भी अच्छा खासा हेल्दी दिया। ये ट्रेंड हम फ्यूचर में भी लेके चलेंगे। जिस तरह मैंने कहा, हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता क्वार्टरली डिविडेंड की भी स्ट्रीम में आ जाएं, मगर ये हमारी आपसे कमिटमेंट है कि हम इंशाअल्लाह ये इंटरिम डिविडेंड इस तरह ही देते रहेंगे। के ट्रेड से सैयद फवाद बसीर साहब ने कहा कि पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ मिक्स। देखिए फवाद साहब, ज़रा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या एवरेज बैलेंसेस जो हैं वो उनमें इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। और जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारी तकरीबन 40% एवरेज बैलेंसेस में इम्प्रूवमेंट आई है, दिस इज़ अ सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट। हैविंग सेड दैट, जो पेस हमारी है वो ये है कि हमने अगले 3 सालों में तकरीबन एवरेज ऑफ द इंडस्ट्री पे आना था, जो तकरीबन 33% के आसपास आता है।
हमें ये लगता है कि जिस पेस में हम चल रहे हैं हम इंशाल्लाह ताला वो अपना टारगेट मीट कर लेंगे। 24 जिस तरह मैंने आपसे कहा इस साल होगा, और उसके बाद 27 फिर 30 और देन फाइनली वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 33 से 35% के दरमियान अगले सालों में चले जाएंगे। हमारी जो ग्रोथ है वो आपको नज़र आएगी कि इट्स एक्चुअली जो एवरेज उसकी ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतर है इन कंपैरिजन टू दी अदर्स। जो टीडीआर का आपने सवाल पूछा था वो मुझे नहीं पता कि आपने वो नंबर कहाँ से उठाया। वो टीडीआर में कोई ग्रोथ तो नहीं आई हमारी, करंट अकाउंट में ग्रोथ आई है, मिक्स हमारा वही है, मिक्स तो वही है नंबर्स में थोड़ी बहुत growth एग्जैक्टली। है। तो वो तो उसी जगह पे खड़ा हुआ है। और टीडीआर पे भी एज लॉन्ग एज आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे तेजी से नहीं जा रहा है, तो टीडीआर इज अ प्रॉफिट मेकिंग प्रोपोजिशन, इट इज नॉट अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन। जब इंटरेस्ट रेट बहुत स्टीप तरीके से नीचे आता है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम, अदरवाइज इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड वी थिंक दैट इंटरेस्ट रेट, जो आपका अगला सवाल था, वो काफी हद तक पीक कर गए हैं। अगर मजीद कुछ रिडक्शन आती भी है तो 100-125% के आसपास शायद कोई रिडक्शन आ सकती है ओवर द नेक्स्ट 6 months or so, but depending on how things will pan out on the international arena as well as local arena, जिस तरह आपको पता ही है कि अभी फ्लडिंग का इम्पैक्ट का पता लगना है, आपको अंदाजा है कि टैरिफ्स कहाँ जा रहे हैं, उनका क्या सिचुएशन रहेगी। सो देयरफॉर ऑल दोज अननोन्स आर देयर, बट वी थिंक दैट शायद इंटरेस्ट रेट जो हैं वो गालिबन अगर गिरे भी तो 100-125% और गिरेंगे, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। जो फरहान साहब पूछ रहे थे अल हबीब से सवाल, ब्रेकडाउन ऑफ पोर्टफोलियो, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा 30% जो है 22.23% जो है वो टी-बिल्स है, हमारा 17.6% जो है वो फिक्स पीआईबी है, और हमारा 53.2% जो है वो फ्लोटिंग पीआईबी है। तो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी वेल बैलेंस्ड हमारा पोर्टफोलियो है इस वक्त इसका ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। एडमिन एक्सपेंसेस का मामला ये है कि जी एडमिन एक्सपेंसेस हमारे पास्ट में बहुत ही लो रहे हैं, और हमने जो ये पूरी अपनी एक्टिविटी बनाई है, अपने लोगों के बोनसेस बढ़ाए हैं परफॉर्मेंस के, उसकी वजह से उसके अंदर आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। मगर वो ग्रोथ कोई आइसोलेशन में नहीं है, वो ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो ग्रोथ आपको, हमारा प्रॉब्लम कॉस्ट कभी भी नहीं रहा, हमारा प्रॉब्लम जो था वो हमेशा से इनकम साइड पे था। अगर मैं आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर करूं ऑन द एडमिन एक्सपेंसेस साइड, तो आपको ये अंदाजा होगा कि हमारे एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं वो मच बेटर एंड कंट्रोल्ड हैं देन द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमारी जो हमारी कॉस्ट पर जो हमारी कॉस्ट इनकम रेशियो, उसमें आपने देखा बहुत सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आई है, और ये सब इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रहेगी क्योंकि एनआईआई इंप्रूव हो रहा है, इसलिए आपको वहां पर इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जो हमारे एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो एवरेज डिपॉजिट का जो है वो पीयर का है 3.71%, बैंक ऑफ पंजाब इज 3.22%। अगर मैं कंपनसेशन पर स्टाफ लेता हूं तो बीओपी इज 1.9 मिलियन रुपीज, पीयर बैंक्स आर 2.2 मिलियन रुपीज। अगर मैं ओपेक्स पर स्टाफ लेता हूं तो वो 3.1 मिलियन रुपीज है, और पीयर जो है वो 4.1 मिलियन रुपीज है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कॉस्ट इनकम रेशियो अंडर प्रेशर हमारी इनकम की वजह से थी, कॉस्ट की वजह से नहीं थी। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट वी आर प्रोबेबली द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। जो मैंने आपसे अभी फैक्ट शेयर किए हैं, इट इज द इनकम विच हैज बीन अ प्रॉब्लम, which hump we have crossed, and mashallah we've come to a point where you will now see a consistent reduction in our cost income ratio। जो आपने देखा ये बड़ा सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हाफ ईयर में आया है, और इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट हाफ एज वेल। जी खबर दिखाइए और कुछ लाइव क्वेश्चन। सर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास थ्रू चैट आए हुए हैं, जी, मैं बताइए। बता देता हूँ। फयाज साहब एटलस एएमसी से उनका क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज द करंट यील्ड। ये जफर साहब ने अभी गया। पोर्टफोलियो के बारे में तो बताया। इज एनी रीप्राइसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड इन द सेकंड हाफ 2025 and what are the year end payout expectations and what is the current account growth target for 2025।
ज़्यादातर चीज़ें तो प्रेसिडेंट साहब ने बता दी। अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। एक तो जो आपने फरमाया कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन कह रहे हैं? जी सर, फुल ईयर की ना? फुल ईयर। व्यवस्था है शदर से उम्मीद बाहर रहा, इससे बेहतर ही आएगा इंशाल्लाह ताला जो भी हाफ ईयर में आया, इससे ज़्यादा मेरे लिए कहना कोई मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही। और क्या था ये दूसरा सवाल? बाकी सर, is any repricing of the investment portfolio expected in second half 2025? इस पे भी आप हाँ, वो भी हमारे we are expecting कि there will be an improvement on that one too. What is the current account growth target for the year जी, वो 2025? मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। जी सर। इसके बाद सर वलीद राठौर साहब का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कवरेज रेशियो ऑफ द बैंक एंड व्हाट पोर्शन ऑफ योर सेविंग डिपॉजिट्स कम अंडर द एमडीआर रिक्वायरमेंट? जी, मैंने बता ये दिया आपने आपको, वो शुरू में। 25% है, मगर वो कम होता जाएगा आगे, क्योंकि हमारा जो हमारे, जैसा मैंने आपको अवामिल बताए कि हमारी इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसके अंदर टीडीआर नीचे जा रहा है, मार्जिन बेहतर हो रहे हैं, तो जो एमडीआर वाले कंट्रीब्यूशन है वो श्रिंक होता जाएगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी 25% था, ये गालिबन 15% के आसपास, क्यों वो तकरीबन 15% के आसपास सिर्फ रह जाएगा। हमारी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और करंट अकाउंट है उसमें एक्चुअली द रियल ट्रिक इज देयर एक्चुअली देन एनीवेयर एल्स। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आप दे चुके हैं, जयान बाबर साहब की तरफ से था। अगेन, कैन वी एक्सपेक्ट क्वार्टरली डिविडेंड्स फ्रॉम बीओपी गोइंग फॉरवर्ड? इसके अलावा अब्दुल्ला साहब का क्वेश्चन है, ग्रेट वर्क टिल नाउ बाय द मैनेजमेंट फॉर द फर्स्ट हाफ, especially treasury and retail, for increasing the current account and rolling down expensive OMOs. Couple of questions I see: sizable investment due for repricing in the second half of CY24, which should, I think he meant 25, which should lower EPS from the current levels. Does the management team see it will be able to replace the outstanding OMO with current accounts to normalize its earnings and dividend payouts at current levels, that is 1.5 and 1 respectively for the quarter? जी, कासिम आप रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? Ji, sir. So there have been a couple of questions with regards to the portfolio. So the duration of the fixed rate bond, so that is slightly short of 2 at the moment, and with an average yield of slightly above 12%. Overall, the portfolio yield is also close to about 12 and a quarter and above. With regards to the repricing of the portfolio in the half year, so in this quarter, in the ongoing quarter, there was no significant repricing. But in the coming quarter, we do have repricing coming up. But as it was explained earlier, that there are TDR maturities as well. So overall, we see a positive impact on the NIM, given that the TDRs will also mature and the repricing will also be there. So by and large, the tilt is in the favor of the NIM. With regards to OMO and the borrowing mix and what we have been doing, as it was explained that the interest rate cycle is towards its end at the moment, we see another 50, 100 or maybe 125 basis point of rate cut by the next quarter or the Q1 of 2026. So at this point in time, the spreads are not as attractive as probably they were at the same time during the last year. So it was evident that the borrowings they have come down from the level what they were in December 2024. So right now the borrowings are not at that level at what they were. Going forward, we expect that the spreads may improve as we enter the next quarter, as there will be some repricings and there will be some spending as well post the floods. So the borrowing requirements can go up and the spreads may widen from the current levels. So the opportunity may arise, and if and when the opportunity is there, we will be ready to pounce on that. Any other question? वालों के सवाल और भी अगर आप प्लीज दे दें, ये सवाल इन्होंने पूछे हैं कुछ लोगों ने। एक तो वो कह रहे हैं रिपीट कर दीजिएगा जो ब्रेक डाउन है हमारा फिक्स्ड और फ्लोटिंग का, और दूसरा उन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि एवरेज यील्ड हमारी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे क्या है, और ये जो बुकिंग पोर्टफोलियो है उसका भी, उसमें भी सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह वो हमारे मार्केट रिस्क और कार को इम्पैक्ट कर सकता है। Which portfolio, sir?
ये बुकिंग से ट्रेडिंग की तरफ। फेयर वैल्यू थ्रू P&L. हाँ। Okay, so in terms of the investment mix, so nearly 55% of the portfolio is on the floating rate bonds. Almost 15 to 16% is on the fixed rate bonds, and 24% is in the T-bills. So it is almost, and on the fixed rate side, as I mentioned earlier, that the modified duration is slightly below 2, whereas the average time to maturity for the fixed rate is 2.7 years, and for the average time to maturity of the floating rate is 2.5 years. So the quality of income that you see is, I must say, it is very, very good. We haven't amassed a lot of risk on the balance sheet, which may hurt us going forward as we approach in year 2026 or year 2027. So the quality of the portfolio is there. We are very nimble right now. And given any changes in the business cycle, the risk is very adequate when we compare it with the return and the spreads. सना तौफीक साहिबा का कोई क्वेश्चन है फ्रॉम आरिफ हबीब सिक्योरिटीज। जी। इस तरह मुस्तफ़ा साहब का टॉरस सिक्योरिटीज से मुझे मैसेज, अदरवाइज मैं दूसरे क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। हसीब साहब का क्वेश्चन है, सर ड्यू टू वेरी हाई लिक्विडिटी एज फ्री फ्लोट इज ऑलमोस्ट 45% the share price, which is very low as per the book value. So do you have any plan to reduce company free float? जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ज़रूर देखते रहेंगे और इसको एक्सप्लोर भी करते रहेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अभी भी बड़ा सीरियसली अंडर वैल्यूड हैं और गालिबन हमें इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो विल कंटिन्यू टू लुक एट इट एंड इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटी कि वो कहाँ तक। अब वो चक्कर ये हो जाता है कि it's a choice between buying back the shares or announcing the dividend. We have taken the route that we announce the dividend rather than buying back the shares. So therefore, let's see how the profitability pans out, which is expected to be very, very strong. We may go for a combination of both in the future. But whatever it may be, the outlook looks very positive as far as the BOP share is concerned. In my very humble opinion. So there was a question about FVOCI portfolio and its classification from the banking to the trading book. So the Bank of Punjab, we have been classifying the portfolio very prudently earlier as well. And I think since last many years, the bank has been taken the market risk capital charge on the banking book portfolio. So our CAR has already incorporated the change, not now, but it has been happening in the past as well. मिस यूसरा फरहान साहिबा IMS सिक्योरिटीज से, उनके दो क्वेश्चंस थे। डू यू सी एनी इम्पैक्ट from floods on the bank level? And the second question was, are quarterly dividends in the plan? President Zafar Saab has already answered both these questions. Yes, Assalamualaikum. This is Shankar from Topline Securities. Basically, मेरा सवाल ये है, if you can guide on what you have written in your presentation, there is a abrogation of MDR on the public sector deposits, जिसकी वजह से आपकी overall NII में भी improvement आई, current deposits में भी improvement आई. So I just want to understand, we know कि MDR is no more applicable on the corporate and public sector deposits. So in your existing deposit mix, पब्लिक सेक्टर डिपॉजिट्स आपके कितने हैं, एंड अगर आप कोई ऐसी रेंज भी बताएं कि हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स यू आर सेविंग बिकॉज नो मोर एमडीआर इज एप्लीकेबल, तो आप अभी कितना वहां से एक्स्ट्रा सेव कर रहे हैं, दैट्स वन. और दूसरा, अगर आप थोड़ा सा गाइड करेंगे, एक और भी सेंट्रल बैंक की रेगुलेशन है कि अगर कोई आपके जनरल प्रोविजंस हैं वो भी दिसंबर 2026 तक अलाउड है ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, तो उस पे आपका क्या व्यू है एज अ बैंक, और क्या आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त कोई जनरल प्रोविजनिंग का भी अमाउंट है? थैंक यू. जी, दिस इज वजाद फ्रॉम अल हबीब एसेट. आई वांट टू आस्क के जो आपका वेटेड एवरेज यील्ड है टीडीआर के पोर्टफोलियो पे वो कितना है? All right, let me just respond to Shankar साहब first. शंकर साहब, बात ये कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर डिपॉजिट है ना,
वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है. इट्स नाउ ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ आवर बुक विच यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट 60% 3-4 years ago. और उसमें मेजोरिटी जो है वो या सेविंग अकाउंट में है या TDR के अंदर है. तो देयरफॉर वहाँ हमें बहुत बड़ी अपसाइड मिलती है और नज़र आती है. और वो हमें इन फ्यूचर भी नज़र आएगी. इसलिए मैंने TDR का नंबर आपसे खास तौर से शेयर किया. सेविंग्स पे जिस तरह आपको पता है ऑलरेडी वो जा चुका है MDR, सो देयरफॉर उसका बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूँ. तकरीबन 15% आएगा पूरे साल के अंदर. और जो TDR है उसका बेनिफिट तकरीबन 4 से 5% हमारे स्प्रेड्स में आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह इन दिस फुल ईयर. जो जनरल प्रोविजनिंग की आप बात कर रहे हैं नदीम साहब, वो नो तो हमने अभी जनरल प्रोविजनिंग हमारी पॉलिसी नहीं है. हमने जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो तो हमने रखी हुई है, मगर उससे ऊपर हमने IFRS 9 चल रही है. IFRS 9 की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो तो हमने मेंटेन की हुई, लेकिन उसके ऊपर हमें कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती कि हमें मज़ीद प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत पड़े. सो देयरफॉर वी थिंक दैट यू नो वी आर मोर देन एडिक्वेटली कवर्ड एज फार एज आवर पोर्टफोलियो इज कंसर्न फॉर फर्दर प्रोविजनिंग. बजाज साहब ने पूछा कि DDR में एवरेज रेट क्या आएगा. आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी इनके इंडिकेट कर दिया है कि वो 4 से 5%, उसकी वजह से हमारा स्प्रेड बेहतर होगा. तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रेट कहाँ पर था और अब कहाँ आ गया. सो देयरफॉर यू नो इट्स अ सब्सटेंशियल improvement as far as the NII concerned, and TDR is a very important component in our equation. जब ये हम पब्लिक सेक्टर डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है हमके सामने वो ये TDR ही आते हैं. और वो TDR जो है उसमें मैंने इस तरह से कहा कि वो ऑलरेडी उसमें अब हम वी आर इन मनी ऑलरेडी जितने रह गए हैं उसके अंदर भी, और गोइंग इनटू द फ्यूचर तो वो मार्जिन और बेहतर ही होगा. नोफल आपने तो कुछ नहीं कहा. इमाद जावेद साहब का क्वेश्चन है, एनी प्लान्स फॉर एक्सपेंडिंग योर एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क? इमाद जावेद साहब. अच्छा, एक और कोई भी है जी, मुस्तफ़ा साहब हैं. मुस्तफ़ा मुस्तंसर साहब जी, इनके क्वेश्चंस हैं, could you please share the growth target for fee and commission income for year 25 and year 26? मुस्तफ़ा साहब ने क्या जी, कहा है? ये टॉरस सिक्योरिटी से कि फ्री कमीशन इनकम टारगेट्स फॉर 25 and 26. फी एंड कमीशन. जी, ठीक है. growth target. And also, could you please share any guidance on the bank's Islamic conversion plans, any progress to date? ठीक. Or could you please share any guidance on recoveries for the rest of 2025? रिकवरी. जी, अच्छा. NPLs. ओके. और ये उस पर भी किसी का सवाल है, पूछ लीजिए. जी, NPL रिवर्सल. अच्छा जी, ईशा प्लीज पूछिए. नहीं है? इनका मुझे क्वेश्चन आई, डॉक्टर आहद है या आनंद है, इनका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक शेयर प्राइस शुड बी कीपिंग इन व्यू द ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक? जी, ओके, ऑल राइट. अच्छा जी, मैं 3 सवाल आ गए हैं, मैं तीनों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ. इमाद साहब ने पूछा ब्रांच एक्सपेंशन प्लान. जी बिल्कुल है. हम जो वो एक साइकोलॉजिकल टारगेट होता है 100 ब्रांचेस अगर हम और कर लेते हैं तो हम 1000 ब्रांचेस को टच कर जाते हैं. बिल्कुल है वो प्लान और हम उसको परसू भी करेंगे, मगर वो अभी हमने डिसाइड करना है कि इन द नेक्स्ट 2 ईयर हम कितना नेक्स्ट ईयर करेंगे और उससे कितना उसके आगे करेंगे. देखिए बात ये है कि वी आर वेरी क्लियर एज ए स्ट्रेटजी ऑफ द बैंक. वी आर फोकसिंग मोर ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी. We are not going after building our deposit base and our balance sheet for the sake of it, but we are looking at the quality of our income as well as deposit mix improvement. And I think substantial improvement has come through. जिसमें ब्रांच एक्सपेंशन का भी बहुत बड़ा रोल है, बट उससे ज़्यादा जो हमारी एग्जिस्टिंग ब्रांच सेटअप था उसको जो हमने रीवैम्प किया है और एक कल्चरल शिफ्ट लेके आए हैं, उसने ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया. तो हम ये समझते हैं कि अभी भी एक ब्रांच ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, एंड वी हैव टू कंटिन्यू टू लेवरेज ऑन इट. वी कंटिन्यू टू हार्नेस दैट बिफोर वी गो फॉर फर्दर क्वांटिटी. वी विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ आवर डिपॉजिट्स एंड एसेट्स. मुस्तफ़ा साहब ने सवाल पूछा था कमीशन एंड फी का टारगेट. वो आपने देखा ऑलरेडी ग्रोथ बहुत सब्सटेंशियल है हाफ ईयर के अंदर. वी एक्सपेक्ट द फुल ईयर के अंदर भी इंशाल्लाह यही 43% की ग्रोथ जो है
वो हमें नज़र आएगी, हमें उसमें कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा। उमर, आपका भी ये ख्याल है? I agree with what you are saying, and specifically on the wholesale banking side, we are seeing very strong earnings growth on the investment banking fees specifically. Thank you. Sir, with specific regards to the digital piece, I don't see any risk, but I just want to sort of accentuate a few points with your permission as well. Because what also is sometimes not very evident is the role which the whole digitalization and digitization process plays in the increase of the volume of the balance sheet, its velocity, the NII and the NFI. So I think what is also very poignant, and we try to capture in our presentation, corporate presentation also, is how the last 3 to 5 years of digitalization and the technology stack has helped the bank improve the volume, the velocity, and the quality of both NI and FI. I think the question also makes more sense in terms of Imad Saab's question about the branch expansion. So what has been happening, which may sometimes is not very evident in the numbers, is the velocity with which the transactions the bank is handling. So in terms of issuance, in terms of volumes of transactions, in terms of fee income, and now increasingly NII as well, because we are building a digital asset book, and we've actually become one of the largest digital lender in the country as well. So that also is a catalyst which is now with increasing velocity started to contribute towards the growth in terms of balance sheet and PLL, leading to the bottom line increase. Thank you. Thank you, Nufar and Umar. जो इस्लामिक बैंकिंग कन्वर्जन का प्लान है वो तो आपको पता है कि हम लोग तो पहले भी अनाउंस कर चुके हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी डिसीजन ले लेती है कि वो फुली इस्लामिक में जा रहे हैं तो हम टाइम से बहुत पहले अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे. वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट. हमने प्लान जमा करवा दिया एंड वी आर होपिंग दैट इफ एवरीथिंग गोज वेल, इंशाल्लाह ताला much ahead of the deadline of 31st of December 2027 we will achieve our full conversion. मुझे इसमें कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा. बोर्ड इज कमिटेड, मैनेजमेंट इज कमिटेड, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड. एनपीएल रिवर्सल आप देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो चुका हुआ है. तो जो हमने बेनिफिट्स लेने थे वो लास्ट 3-4 ईयर्स में ले लिए हुए हैं. मुझे इमीडिएट कोई बहुत सब्सटेंशियल एनपीएल रिवर्सल नज़र नहीं आता. हाउएवर वी आर स्टिल वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑन सर्टेन थिंग्स जहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंकों को, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल राइट ऑफ नहीं ले सकते, अगर रिलीफ लॉ में आ जाता है तो फिर बहुत सब्सटेंशियल रिवर्सल जो है वो अगले 1-2 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल, यानी टू दी एक्सटेंट ऑफ कि अगर वो रिवर्सल आ गया तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन डबल हो सकती है इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स और सो. तो एक तो ये बात. डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा था शेयर प्राइस एक्सपेक्टेशन. अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछें, मेरा ख्याल ये है कि हमारे शेयर को इस वक्त 35 रुपये पे होना चाहिए. जिस तरह की उसके अंदर इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करती है, तो मेरा तो ये ख्याल है कि 35 रुपये से कम इसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए. हमारी ब्रेकअप वैल्यू 30 रुपये आ रही है और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ईयर एंड तक वो और बेहतर हो जाएगी. तो देयरफॉर उसकी बेसिस पे मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ अगर मैं उसी को रेफरेंस बना के चलता हूँ तो 35 रुपये तो ऐसी प्राइस है जो मैं सेफली कह सकता हूँ कि बीओपी की शेयर प्राइस होनी चाहिए. और अब हमारी बैलेंस शीट में जो सफाई हो गई है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं. देयरफॉर the market should also look at it a little leniently than what they have been treating us with in the past few years. वसीम साहब का सर क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज द एवरेज स्प्रेड ऑन योर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स? और कोई क्वेश्चंस हैं? 2-3 इकट्ठे हो जाएं फिर हम पूछ लें. Ladies and gentlemen, you can raise your hand so that we can take you for your questions. इनका वसीम साहब का जवाब ले लेते हैं. जी, कासिम साहब. कासिम से जी. कासिम जी. So average spread on the floating rate portfolio is close to 80 basis points on average. And as we mentioned earlier, the average time to maturity is around 2.5 years. जी, मोहम्मद सकलैन साहब, प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. जी, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग वंडरफुल रिजल्ट्स टू अस. और मेरा क्वेश्चन एक है कि क्या हम कोई ऑनगोइंग नेक्स्ट ईयर के अंदर कोई मैनेजमेंट में चेंजेस देख सकते हैं? क्वेश्चंस टू मिस्टर जफर मसूद साहब. देखिए, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है सकलैन साहब, कुछ भी हो सकता है.
मगर फ्रैंकली स्पीकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस ट्रेजेक्टरी पे बैंक चल रहा है और जितनी लेवल ऑफ मोटिवेशन से हम सब काम कर रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल बात करूंगा सकलैन साहब, ये आपने बड़ी एक ना बड़ा आपने एक मैं कहूँगा कि ट्रिकी सा सवाल पूछ लिया। तो मैं ज़रा आपको इस पर सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि मैं फिलोसॉफिकल जवाब ही देता हूँ कि देखिए बहुत जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में होती हैं ना, वो एट टाइम्स जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है दो तीन चीज़ों की। एक तो इस बात की कि आप ज़िंदगी में आपको लोग किस तरह व्यू करते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन को कैसे देखते हैं, आपके लोगों को कैसे देखते हैं। आई थिंक हमने वो चीज़ अचीव कर ली है कि जहाँ हम बताते हैं कि हम बैंक ऑफ पंजाब में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोग जो हैं उनकी कंप्लेंट्स कम होती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री ज़्यादा होती है। हमारी फैमिलीज़ के अंदर हमारा एक स्ट्रेचर चेंज हुआ है कि यार दे आर द प्रोफेशनल्स कट अबव एंड दे हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। हमने कोशिश ये की है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं जवाद साहब, हमारे जो हेड ऑफ HR हैं, यहाँ मौजूद हैं। हमने बहुत सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, नॉट जस्ट द कॉम्पनसेशन परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन बट ऑल्सो वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर। एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, जहाँ पर आपके बच्चों ने कल को बड़ा होना है, आपके ख़ानदान ने आगे चलना है, आपकी कम्युनिटी ने आगे बढ़ना है। हम ये समझते हैं कि जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन ऐसी है कि जो हमें इस तरह की सेटिस्फैक्शन देती है कि मैं और मेरी पूरी मैनेजमेंट को ये नज़र आता है कि हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम बैंक ऑफ पंजाब को इसी ट्रेजेक्टरी पे आगे लेके जाते रहें और दिखाएं कि किस तरह एक इंस्टीट्यूशन जो आज से 4-5 साल पहले स्ट्रगल कर रहा था और वो आज कहाँ पहुँचा है और वो क्या इंडस्ट्री के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। और अब लोग कोट कर रहे हैं एग्जाम्पल बैंक ऑफ पंजाब की कि देखिए, चाहे वो बॉटम लाइन हो परफॉर्मेंस, चाहे वो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो डिजिटल की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री हो फॉर FDI, यू विल फाइंड बैंक ऑफ पंजाब एट द फोर फ्रंट। हम लोगों का कोई इरादा नहीं है कि कोई मैनेजमेंट में चेंज आए। बाकी आपको पता है कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। ईशा अहमद का एक और क्वेश्चन है सर, व्हाट आर the EPS expectations for the next quarter? Dr. Ahmed, although this is not something. Dr. Ahmed, sir, Dr. Ahmed. Expectation for the EPS of the next quarter, which जी जी हम ये नहीं, ये तो I think इस पे तो कमेंट नहीं कर सकते, रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी। हाँ, जरा थोड़ी सी मेहनत कर ले, इतना ज़्यादा तो और आपको देखो सब कुछ रिवील कर दिया, जी 35 रुपए तक आपको इंडिकेट कर दिया, और क्या बताएं। थोड़ा एस्टिमेशन और- कर लें। और मेरा ये ख्याल है, देखिए मैं तो वैसे भी ज़िंदगी में इस बात को बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ें आप खुल के लोगों से बात कर सकते हो, बता सकते हो, वो बता देनी चाहिए। और मेरे बारे में तो लोग शिकायत ही बल्कि करते हैं कि मैं ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर लेता हूँ और शायद ज़्यादा ब्लंट भी हूँ। तो मैं तो कोशिश ये की है कि जो एग्जैक्ट सिचुएशन, जो आपके कंसर्न हो सकते हैं, वो सब आपको बताऊं। जो मैं जनरली समझता हूँ वो सब चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर ली है। अब थोड़ी सी मेहनत जो है ना, वो आप लोग भी थोड़ी सी करके और ज़रा प्राइसेस को बेहतर तो करें ना प्लीज़। ये शंकर साहब का एक और सवाल था, माय अपॉलॉजीज, शंकर साहब का सर CFA जी। कैन यू रिपीट द पॉसिबिलिटी ऑफ बिग रिवर्सल द प्रेसिडेंट साहब टॉक्ड अबाउट एंड गिव इट्स बैकग्राउंड? जी मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो बैलेंस शीट है ना, उसके अंदर आपको पता है कि जिस तरह मैं पहले भी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स में, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में कहता रहा कि हमारे लिए ये अंटिल लास्ट ईयर एक बिजनेस एज यूजुअल था, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हुआ करता था। अभी भी तकरीबन 6.5-7% के करीब हमारा इन्फेक्टेड पोर्टफोलियो है ना। वो पोर्टफोलियो वो है जिसके अंदर हम प्रिंसिपल पे राइट ऑफ नहीं ले सकते। अगर आप प्राइवेट बैंकों को देखेंगे तो उन्होंने प्रिंसिपल पे राइट ऑफ लेके अपनी बैलेंस शीट को साफ कर दिया। हम वो नहीं कर पाए। अगर गवर्नमेंट जो है वो कल को एक लॉ ले आती है जिसमें वो इस पर वो बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि जहाँ पर वो एग्जिस्टिंग जो ट्रबल्ड एसेट्स है, इंडस्ट्रीज, उनको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, जो बैंकों की सपोर्ट से ही रिवाइव होगी, वहाँ पर वो अलाउ करेंगे तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको एक एडवांटेज मिल सकता है। अगर लॉ में प्रोविजन बिल्कुल कैटेगोरिकली आ गई कि वो एक
एक मेथड के तहत प्रिंसिपल पे भी राइट ऑफ ले सकते हैं। अगर वो हो गया, जो आज लॉ में बार नहीं है बाय द वे, मगर एक नॉर्म है, तो फिर आपको एकदम से बहुत बड़ा बूस्ट नजर आएगा रिवर्सल के अंदर, जो कि इतना बड़ा हो सकता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को डबल कर सकता है, बल्कि डबल से भी ज़्यादा कर सकता है अगर मैं आज बैठ के उसकी असेसमेंट करता हूँ। आई होप शंकर साहब आई बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। जी, Participants are commenting that जी आ गए questions. As a shareholder, we are extremely satisfied and happy with the Bank of Punjab. ये डॉक्टर अहमद साहब ने कहा है जिनके questions थे सर. अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आप और सेटिस्फाई होंगे इंशाल्लाह ताला गोइंग इनटू द फ्यूचर। तजम्मल साहब ने एक सवाल किया कि there is any possibility of second interim dividend in the third quarter. We've answered that. President साहब has. दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने वो जिस तरह कायदे आज़म उनका ये ना, ये अल्लामा इकबाल का पेबस्तर से जी। क्यों जी, इकबाल का, अल्लामा इकबाल का है ना, पेबस्तर है शजर से उम्मीद बाहर। सो इंशाल्लाह मैंने आप लोगों से पहले भी ये कहा था, मैंने आप लोगों से 4 साल पहले ये कहा था कि ये शेयर जो है ना, ये ईयरली शेयर नहीं है, इसको आपको 3-4 साल के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। और आप आज देख लीजिए कि 3-4 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं। बल्कि 4 साल पहले मैंने एक स्ट्रेटजी आउटलाइन की थी, असद वो तुमने उसकी क्लिप बनानी थी, क्या हुआ उसका? वो बना के उधर ये हमारे इन्वेस्टर्स को भिजवाओ सबको, हम आपसे वो भी शेयर करेंगे कि 4 साल पहले मैंने क्या कहा था, आप वो देख लीजिएगा। हमारी कोशिश ये होती है जो हम चीज़ कमिट करें, हम फिर उस पर स्टैंड भी करें, उसको आगे लेके चलें। हमने आपसे कमिट किया है कि हम डिविडेंड को पॉजिटिवली देखेंगे, इंटरम हमने वो डिलीवर किया आपको, लोग यकीन नहीं करते थे। यहाँ तक हुआ कि जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई तो उसके अंदर मुझे शेयर होल्डर्स ने कहा कि जी आप क्वार्टरली क्यों कह रहे हैं, आप हाफ ईयरली दे दें। दे वर नॉट इवन श्योर कि हम हाफ ईयरली देंगे या नहीं देंगे। लिहाजा मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि प्लीज़ पॉजिटिवली देखिए चीज़ों को, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर ही चीज़ें नज़र आएंगी आपको, और इंशाल्लाह इससे बेहतर ही नंबर नज़र आएंगे, इससे ज़्यादा बेहतर ही रिटर्न नज़र आएगा। और गोइंग इनटू द फ्यूचर, अभी तो वो कहते हैं ना कि चले हैं तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, फिर आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है, बल्कि क्वेश्चन ही सजेशन है कि आप जो डिविडेंड की बात करें, अगर आप क्वार्टरली डिविडेंड देंगे तो मार्केट को बहुत बूस्टअप होगा, चाहे वो कम ही दें। और इसके अलावा एक आप मिक्सअप कर लें कि कुछ बायबैक भी हो और कुछ डिविडेंड भी हो, तो उससे आई थिंक मार्केट में आपकी जो प्राइस है वो अचीव हो सकती है, जो कि आपकी प्राइस होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। However, if there are no more questions, we can. अगर कोई और questions है, ladies and gentlemen, तो please हाथ raise कर दीजिए। वो मुझे भेज रहे हैं, चैट में देखें। खबर खोलिए, चैट हो गए, मुझे भेज दिए थे आप। अच्छा जी, अभी भी किसी की कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ जी, देख लो। प्लीज बता दीजिए। So, Zafar Saab is saying that we'll wait for another 5 minutes, and if you have any questions, you can either raise your hand or put them up in the chat. एक क्वेश्चन आया बट मेरे पास नाम नहीं है उनका। वो क्वेश्चन है, विल द राइट ऑफ एडजस्टमेंट इन एनपीएल्स बी एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंट्री और विल बी कैश इम्पैक्ट्स एज वेल? जी तो जी डिपेंड करता है कि वो क्या लॉ आता है और किस तरह सिचुएशन क्लियर होती है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर वो डायरेक्टली कैपिटल में भी ऐड हो जाता है ना, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि आज हमारा जो बहुत हेल्दी है माशाल्लाह 3.46% पे एलआर, वो एलआर जो है वो किस लेवल पे जाएगा, और जो राइट ऑफ आएगा उसका 33% हम लैंड कर सकते होंगे या हम इन्वेस्टमेंट उसकी कर सकते होंगे 33 टाइम्स। तो जो 33 टाइम्स हम उसको कर सकेंगे, जितने पैसे हमारे कैपिटल में ऐड होंगे वो उसका एनआईआई पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा और पीएनएल पे इम्पैक्ट उसका आएगा ही आएगा, वन वे और the other। थैंक यू। फारूक दानियाल साहब की एक सजेशन है, आई हैव अ सजेशन दैट देयर आर लॉट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फ्रॉम ऑल पंजाब through courts fees. If possible to launch branches near courts, otherwise people are following nearby other entities. जी बहुत शुक्रिया फारूक साहब, we'll keep that in mind. By the way, हर जगह पे हमारी ब्रांचेस मौजूद है, पंजाब में तो बहुत ही अच्छी कवरेज है by the way, but nevertheless we will evaluate your suggestion and definitely look at it.
very positively. जी Sir, I अहमद think that pretty much अहमद it. मेहंती साहब का ये है कि स्टिल जी अहमद मेहंदी साहब का दोबारा नहीं वो आई थॉट कि वो वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी वॉल्यूम की बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं अब ठीक हो गई है वॉल्यूम। और किसी कोई सवाल तो नहीं? चलिए कासिम, हम 5 मिनट और वेट कर लेते हैं क्योंकि मैं Sir, I think pretty much we have covered everything. I कासिम don't see any other questions over there as well, sir. Chat में भी कोई खास, I mean, there is no new question in the chat. आपको आवाज आ रही है कासिम मेरी? सर अभी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मार्केट में कोई भी सवाल जो है ना वो आंसर्ड रह जाए। वी आर विलिंग टू वेट फॉर अनदर 5 मिनट। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, मगर प्लीज मुझे 35 रुपए की शेयर प्राइस आपसे चाहिए। Quantum covered under the first loss coverage. Quantum covered. The first loss coverage is 70। एक सेकंड जी, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं। 76.59%, 77%। दोबारा आ गए सकलैन साहब? पूछे सकलैन साहब क्या कह रहे हैं? जी सकलैन साहब बताइए। आप बड़े ट्रिकी सवाल पूछते हैं, फलसफे पे चली जाती है बात। जी नहीं सर, मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आप 35 रुपीज कह रहे हैं पर शेयर प्राइस का फ्यूचर में, तो ये आप किस बेस पे इसको टारगेट कर रहे हैं? कोई 35 रुपए में ऐसे कह रहा हूँ कि आज हमारी ब्रेकअप वैल्यू है 30 रुपए, और जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स नजर आ रहे हैं मैंने आपको पूरा रिवील करके बताया कि कैसे वो बेहतर होगा। मेरा ये ख्याल है कि शायद हमारी ब्रेकअप वैल्यू जो है वो 35 रुपए के आसपास आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँ कि कम से कम ब्रेकअप वैल्यू पे तो ले आओ यार। वैसे तो मुझे आपसे कहना चाहिए सकलैन साहब कि 40-50 पे लेके जाएं, बट चले मैं फिलहाल 35 पे ही आपसे इत्तेफाक कर लेता हूँ। सर हमारी तो पूरी कोशिश है। थैंक यू सकलैन साहब। बहुत आप कहाँ से हैं, किस हाउस से हैं? सर ARN फाइनेंशियल से हूँ सकलैन, इधर लाहौर में लोकेटेड है LSE में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी रहमान साहब। जी अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट सेशन, काफी इंसाइटफुल। आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें ही कवर कर ली, और सकलैन ने तो जॉब टेन्योर पे भी क्वेश्चन कर लिया। एक चीज थोड़ी सी जो है वो शायद रह गई। ओवरऑल अगर अगले 1 साल 1.5 साल में डिपॉजिट्स का अगर कोई बैंक ने टारगेट रखा हो, 2 ट्रिलियन के काफी करीब पहुंच गए हैं, तो उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें। थैंक यू। अब्दुल रहमान आप किस हाउस से हैं? जी मैं भी ARN फाइनेंशियल एडवाइजर्स का CEO। अगर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप और सकलैन 35 पे ले जाएंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 2 ट्रिलियन तो इस साल में क्रॉस करूंगा ही करूंगा, मगर इंशाल्लाह अगले 3 साल में कोशिश करेंगे 2.5 भी क्रॉस कर ले। जाफर बैठा है कि नौफल साहब कर लोगे ना? 6 का है, 2.6 का। लो जी CFO साहब तो मुझे और डांट रहे हैं। वो कह रहे हैं यार अब एम्बिशियस ही नहीं है CEO साहब। वो कह रहे हैं 2.6 में करूंगा। तो 2 ट्रिलियन तो हम इस साल कर लेंगे, अगले 3 साल में इंशाल्लाह 2.6 की प्रोजेक्शन ये CFO साहब ने बनाई हुई है। वी इंशाल्लाह क्रॉस 2.6 एज वेल। बट जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा अब्दुल रहमान कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए रादर देन क्वांटिटी। तो while we will increase the balance sheet, while we will increase our deposits, but the quality of deposit is very important to my mind. Low cost saving, Islamic deposit and current account averages. दूसरा मैं आपको एक और चीज़ पे, क्योंकि वो सकलैन साहब ने पहले सवाल टेन्योर पे पूछा था। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन माशाल्लाह से में इसमें इतनी डेप्थ आ गई है कि अभी आपने देखा एक ट्रांजिशन हुई। हमारे जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेड थे वो माइग्रेट कर गए टू ऑस्ट्रेलिया। हमने बाहर से किसी को लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास मार्केट के सबसे अच्छे लोग थे और वो मौजूद थे, और उमर ने उनको फ़ौरन ही रिप्लेस कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि इस बैंक में कोई आदमी भी जो है ना वो इंडिस्पेंसिबल नहीं है। हर आदमी जो है उसकी सक्सेशन और रिप्लेसमेंट मौजूद है। हमने अपने आप को बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, और उस इंस्टीट्यूशनलाइज करने की वजह से ही आपको ये रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। देयरफॉर मैं हूँ या ना हूँ, ये या मेरे अलावा कोई और हो या ना हो, द बैंक विल कंटिन्यू टू फ्लरिश एंड डू वेल इंशाल्लाह ताला। और एक ट्रेजेक्टरी भी देख सकते हैं आप वेरीफाई कर सकते हैं कि पिछले 15-16 साल के अंदर ये बैंक कहाँ से कहाँ पहुँचा है।
वो सिर्फ इस वजह से कि इसकी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी चल रही है। और एक और मैं आपसे बात आज शेयर कर लेता हूँ कि पॉलिटिकल सेटअप हो या ब्यूरोक्रेसी ऑफ पंजाब हो, they take a lot of pride in Bank of Punjab and its governance structure. Therefore, they will never tinker, they don't tinker, then they will never tinker with the Bank of Punjab's governance structure. They will make sure कि इसकी sanctity बरकरार रहे। ये individual driven नहीं है, ये institutional move है जिसमें आपको 15 साल में ये इतने phenomenal results नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। एक और कोई था? फवाद यूसुफ थैंक यू सो मच सर। आप जैसे वो शेयर प्राइस की बात कर रहे थे ना, तो आप जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं करंट अकाउंट, आप अभी भी स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा भी जो भी बैंक 30% के अराउंड करंट अकाउंट पे होता है, सो वो अपनी ब्रेकअप वैल्यू, बुक वैल्यू के करीब काफी आ जाता है। सो जिस ट्रेजेक्टरी पे आप हैं, आई थिंक हम ज्यादा दूर नहीं है वो दोनों माइलस्टोन्स अचीव करने में। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अभी तो 20 टपाए ना कल सुबह, प्लीज वन स्टेप एट ए टाइम। जी फवाद साहब, आपका फिर सवाल है। मेरा ये सवाल है, शायद मैं मिस कर गया आपका। एनपीएल के प्रोविजन आपने 75% बताया या कुछ और बताया आपने? और अगर 75% है तो आपको फर्दर प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा? नहीं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो उन्होंने सवाल ये पूछा था कि आपका जो एग्री और एसएमई का पोर्टफोलियो है वो कितना है, जो टोटल पोर्टफोलियो का है। मैंने वो बताया था कि वो 1/3 है। फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि फर्स्ट लॉस कितना है उसमें से कवर्ड, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तो वो मैंने बताया था कि वो 77% है। और फिर उसके अंदर अगर मैं क्लीन एक्सपोजर अपना देखता हूँ तो उसका वो सिर्फ 8% है, वो माई टोटल पोर्टफोलियो। और उसमें से जो हमने अभी स्ट्रेस टेस्ट किया हुआ है उसकी बेसिस पे सिर्फ 0.5% ऑफ द 0.4, मैं उसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, 0.5% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो इज एट रिस्क विच इज नॉट फर्स्ट लॉस गारंटी और कवर्ड थ्रू द इंश्योरेंस, एंड वी एक्सपेक्ट कि शायद वहाँ लॉस पोटेंशियली आ सकता है। उसमें सिक्योर्ड लोन्स भी हैं और अनसिक्योर्ड लोन भी है। हमारे जो अनसिक्योर्ड लोन है वो मेयरली 0.18% है ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो इन द फ्लड एरियाज एंड इन एसएमई इन एग्रीकल्चर। जी एक और सवाल जी कासिम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपकी सुपरविजन में बैंक इज ग्रोइंग वेरी वेल। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था शायद किसी फोरम के ऊपर कि वाई बैंक ऑफ पंजाब इज नॉट बाइंग बैक शेयर्स। ठीक है, सॉरी मैं सेशन एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो मे बी आपने इसका कोई क्वेश्चन आया जवाब सर वो दे। नहीं, मैं दोबारा जी बता जी, जी देखिए बात ये है कि जो बैंक रिलेटिवली थिनली कैपिटलाइज होते हैं, जो हमारा केस है आपके सामने नंबर से आप देख सकते हैं, तो उनके लिए बायबैक का ऑप्शन और डिविडेंड के ऑप्शन में उनको टॉस अप करना पड़ता है और वे करना पड़ता है कि कौन सा बेहतर रूट है। हमारी मैनेजमेंट ने ये अज्यूम किया और हमारे बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि गालिबन हमारे केस में ये बेहतर है कि हम इस वक्त डिविडेंड दें रादर देन बाइंग बैक। एंड मेरा ये लगता है कि हमारे बोर्ड का डिसीजन ठीक था नदीम साहब, क्योंकि जिस तरह एकदम से शेयर प्राइस पे बूस्ट हमें नजर आती है हाफ ईयर के डिविडेंड के बाद, उससे हमें ये लगता है कि ये डिसीजन गालिबन बहुत अच्छा डिसीजन था जो हमने लिया। लेकिन हम इसको पूरी तरह डिसमिस नहीं कर रहे हैं कि हम बायबैक नहीं करेंगे। हम बायबैक में बहुत इंटरेस्टेड हैं, मगर हर दफ़ा जहां हमारे पास चॉइस होगी कि हम बायबैक करें या डिविडेंड करें, वहां हमें ये वे करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना लीवे अवेलेबल है टीयर 1 कैपिटल के अंदर कि हम कौन सा रूट फॉलो करें। एंड देयरफॉर वो हर दफ़ा हम ये इसको वे करके और डिसीजन लेते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर जिस तरह हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की आउटलुक है, हम एक्चुअली ये दोनों चीज़ें करें। जो किसी ने कहा भी था, गालिबन फवाद यूसुफ साहब ने कहा था कि डिविडेंड और बायबैक दोनों का ऑप्शन आपको देखना चाहिए। मैं फवाद साहब से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। हम उसको और सीरियसली देखेंगे गोइंग इनटू द फ्यूचर, क्योंकि हमारी पोजीशन बहुत बेहतर होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम उससे दोनों चीज़ों को वे प्रॉपरली कर सकते हैं
कि हम कहाँ रुकें और कहाँ जाएं। अब ये सब कुछ जो है ना, ये डिपेंड करता है, टू टेल यू द ट्रूथ, आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोगों ने शेयर प्राइस माशाल्लाह से वहाँ ले गए जहाँ कुछ होना चाहिए, तो शायद बायबैक का ऑप्शन जो है वो हमारे लिए क्लोज होता जाए। मगर अगर आप वहाँ लेके नहीं गए तो वो ऑप्शन हमारे लिए हमेशा खुला रहेगा। बट जो ट्रेजेक्टरी बैंक की है वो माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव है कि मुझे लगता है कि ये ऑप्शन हमारे लिए हमेशा ही खुला रहेगा, क्योंकि हमें बहुत इस पे कभी इम्कान है और यकीन है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अगली 3 साल की जो है वो सारी इंडस्ट्री से बेहतर आपको नजर आएगी। आपने ये देखा, हमने 100% ग्रोथ दिखाई है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में, और ये विदाउट एनी कैपिटल गेन्स है। आप सोचिए अगर हम कैपिटल गेन्स उसमें डाल देते तो शायद हम सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते, जिसकी हम बड़ी हमारे पास कैपेसिटी है। मगर हम ये समझते हैं कि हमें इस बात पे बहुत केयरफुली ट्रेड करना चाहिए और हमें कोर इनकम के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी एक सेटिस्फैक्शन मिले और हमें भी एक एक मोटिवेशन हो कि हम अपने कोर बिजनेस पे ही फोकस करें। जी, सवाल any more questions? अच्छा देखिए, जी, 5 मिनट और, मैं तो आप लोगों को 5-5 मिनट देने को फुल तैयार हूँ। आपके कटहरे में हाजिर हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। आप लोग बताएंगे कि जी बस अब हम तंग आ गए, हम जा रहे हैं, आप लोग जाएं। लेकिन प्लीज बैंक ऑफ पंजाब पे थोड़ा सा रहम करें, उसको ज़रा थोड़ा सा वो स्टेटस दें जो वो डिज़र्व करता है, उसकी प्राइस प्लीज़ ज़रा वहाँ लेके आइए। आप सबसे मेरी बड़ी गुजारिश है, मोहब्बत। जी, कोई सवाल नहीं है? एक आया तो है अभी कुछ कमेंट है। हाँ, एवरेज करंट डिपॉजिट आप बात कर रहे हैं एवरेज ग्रोथ की ना? 24% ग्रोथ है। 24% ग्रोथ नहीं, एवरेज करंट अकाउंट का ग्रोथ है सर। जी वो हमारी कितनी है? हमारी 40% एवरेज ग्रोथ है करंट अकाउंट। एवरेज ग्रोथ है 40% एवरेज ग्रोथ है जी करंट अकाउंट के अंदर। एवरेज की बात हो रही है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा जी इंशाअल्लाह ताला। जनाब बस सर एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस वी आर एक्सपेक्टिंग? यार मैंने जवाब दे दिया, उसका दोबारा दे देता हूँ। अगले 2 साल में इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि हम 1000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसको टच करें। बट मैं ये भी कैविएट साथ लगा दूं कि हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं देन द क्वांटिटी। तो मे बी इट्स इम्पोर्टेंट कि हम एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को अच्छी तरह लेवरेज कर लें, अपना डिपॉजिट का जो मिक्स है उसको बेहतर कर लें, अपनी जो एवरेजेस है उसको बेहतर कर लें, और फिर उसके बाद ब्रांच एक्सपेंशन को ज़्यादा फोकस तरीके से परसू करें। जी, एक और भी जी खबर दिखाइए वो जो लास्ट। सर न्यू क्वेश्चन एज सच अब और कोई नहीं है? वही जी, ये जो अभी सर्कुलर डेट पे आप सवाल पूछ रहे हैं, ये आई डोंट थिंक मैं उस पर जवाब देने की पोजीशन पे हूँ। आई थिंक वो किसी पावर सेक्टर की कोई वो होगी, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग, तो आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई डोंट थिंक आई एम कॉम्पिटेंट टू कॉमेंट ऑन दिस। जी, ये मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, बैंकों ने पूरा फोकस उनको दे दिया है, और उससे भी हमारे नंबर्स बेहतर ही होंगे अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग होगी। मल्टीपल रीजन। एक तो इसलिए वो बेहतर होगी क्योंकि हमारा वो इसलिए बेहतर होगी क्योंकि जो पावर सेक्टर की वो एंटिटीज जो कैश स्टार्ट है उनको एक बूस्ट मिल जाएगा और उनमें एक एक्टिविटी नजर आएगी। दूसरा ये कि जो हमारे लोन रीस्ट्रक्चर होते रहे इन द पास्ट मैनी ईयर्स, उस पर हमारे पास एक क्लियर कट एग्जिट स्ट्रेटजी नजर आएगी जिससे वो लोन पे डाउन हो जाएंगे। और तीसरा ये कि हमारी एसेट बुक जो है वो मजीद बुक बड़ी होगी और उसमें एक डिसेंट रिटर्न जो है वो हमें नजर आता है कि हमें इंशाल्लाह इस इंक्रीमेंटल लोन पे मिलेगा। दैट्स इट। जी सर, देख लें। मैं जा सकता हूँ या आप अभी चाहते हैं कि मैं बैठूं, या मैं उस वक्त तक बैठने के लिए तैयार हूँ जब तक 35 रुपए नहीं होता शायद। वो कह रहे हैं कुछ लोग कि अगले हफ्ते तक शायद इंशाल्लाह हो जाएगा। Some people are saying। अच्छा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वी विल कम बैक टू यू इंशाल्लाह ताला आफ्टर द 9-month रिजल्ट। जी। और इस दफा जो है वो कराची आके हम इसको फिजिकली करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज एट द स्टॉक एक्सचेंज और जी। समवेयर एल्स। बट 9 months में इतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे
कि हम चाहेंगे कि हम और आपसे फिजिकली वहाँ पर मिलें और आपसे कुछ उसमें आपसे मिठाई खाएं और आपसे ही चाय पिएं। सो आप लोग ज़रा तैयारी कर लें खर्चे की। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Khawatino Hazrat Moses. बहुत शुक्रिया. Thank you very much for your participation. And as Zafar Saab has said, we'll see you in October, inshallah, October, November after the September 30th results. Thank you very much. Khuda Hafiz. November, you are right. November, जी. अक्टूबर में तो रिजल्ट आएंगे तो नवंबर में जी. अक्टूबर एंड में हमारा इरादा है रिजल्ट्स अनाउंस करने का जी. एंड इंशाल्लाह नवंबर मिड में हम कराची में आके आपसे मुलाकात करेंगे अगर मैं मुल्क से बाहर नहीं गया तो जी. 12 नवंबर में ही सब पॉइंट टाइम जी. वी विल डेफिनेटली मीट अप विद यू. Thank you very much जी. खुदा हाफिज. शुक्रिया जी. Thank you.